شام ہوتے ہی جنگل میں تیز بارش شروع ہو چکی تھی۔ سبھی پکشی اپنے اپنے گھروں میں بارش کو انجوائے کر رہے تھے۔ اس سب میں صرف لالی چڑیا اور اس کا پتی مانو بہت پریشان تھے۔ ماں، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کچھ کھانے کو دو۔ گھر میں تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اب میں کیا کروں؟ ہاں، میں بھی تو کافی دنوں سے بیمار تھا، باہر سے کچھ لا بھی نہیں سکا۔ میں ابھی جاتا ہوں اور اپنی منیا کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ لیکن اتنی بارش میں آپ کیسے جائیں گے؟ اور آپ کی طبیعت بھی تو ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، اور بارش کا کیا ہے؟ اگر یہ کل تک نہ رکی تو کیا میں اپنی منیا کو بھوکا رکھوں گا؟ میں ابھی جاتا ہوں، تم بس اپنا اور منیا کا خیال رکھنا۔ لالی کے منع کرنے کے باوجود بھی مانو چڑا چلا جاتا ہے۔ مانو چڑے کو گئے کافی سمے بیت چکا تھا، مگر وہ ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ ماں، باہر بارش تو بہت تیز ہو رہی ہے، پتا جی ابھی تک نہیں آئے۔ ہاں منیا، میں بھی بس اسی بات سے پریشان ہوں۔ مانو جی کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، پتہ نہیں وہ اس وقت کہاں ہوں گے۔ ٹونی اس بات سے کافی پریشان تھی۔ اوپر والے میرے پتی کی رکشا کرنا، پتہ نہیں وہ کہاں ہوں گے، میں ان کو ڈھونڈنے بھی نہیں جا سکتی۔ منیا گھر پر اکیلی رہ جائے گی، کیا کروں میں؟ ہاں، میں ایسا کرتی ہوں، کالو بھائی کے گھر جاتی ہوں، ان سے کہتی ہوں کہ وہ مانو جی کو دیکھ آئیں، ابھی زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے وہ۔ منیا بیٹا، تم گھر پر ہی رہنا، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ کالو کے گھر جاتی ہے، وہ اس کے دروازے پر دستک دیتی ہے، تبھی سومی باہر آتی ہے۔ ارے لالی، اتنی تیز بارش میں تم یہاں؟ ہاں وہ سومی بہن، مجھے کالو بھائی سے کام ہے، کیا وہ گھر پر ہیں؟ ہاں ہاں لالی، اندر آ جاؤ، کیا بات ہے؟ کالو بھائی، مانو جی ابھی تک گھر پر نہیں آئے، وہ آہار لینے گئے تھے، میں بہت پریشان ہوں، وہ ٹھیک بھی نہیں تھے، آپ انہیں دیکھ آئیں، ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے۔ کیوں جی؟ کالو جی کیوں جائیں؟ باہر اتنی تیز بارش ہو رہی ہے، اور مانو کو کون کہتا تھا کہ وہ جائے؟ سومی بہن، گھر پر کچھ بھی نہیں تھا، مانو جی اتنے دن سے ٹھیک نہیں تھے، اس لیے ہم بارش کے لیے آہار اکٹھا ہی نہیں کر سکے۔ منیا کو بہت بھوک لگی تھی، ہم نے رات سے کھانا کھایا ہوا ہے، اسی لیے وہ باہر گئے تھے۔ لالی بہن، تم فکر مت کرو، مانو بھائی ٹھیک ہی ہوں گے، اگر اوپر والے نے چاہا تو وہ صبح ضرور واپس آئیں گے۔ اور ہاں، ہم نے بریانی بنائی ہے، سومی تم لالی بہن کو بریانی ڈال کر دو۔ پھر سومی نہ چاہتے ہوئے بھی لالی کو بریانی دیتی ہے۔ لالی بہن، آپ بے فکر ہو کر گھر جائیں، منیا اکیلی ہوگی، اسے کھانا کھلائیں اور خود بھی کھائیں، مانو بھائی ضرور واپس آ جائیں گے۔ لالی کے جانے کے بعد سنیے جی، آپ یہ جو لالی کی حمایت کرتے ہیں نا، مجھے بالکل بھی پسند نہیں، اتنی محنت سے میں نے بریانی بنائی تھی، خواہ مخواہ اس کو دے دی۔ کیا ہو گیا ہے سومی؟ یاد کرو، پچھلی بار جب ہر طرف آہار ختم ہو گیا تھا تب لالی نے ہی ہماری مدد کی تھی، تم تو ہو ہی احسان فراموش۔ لالی گھر جا کر منیا کو کھانا کھلاتی ہے اور وہ اسے سلا دیتی ہے، خود وہ ساری رات جا کر مانو کا انتظار کرتی ہے۔ ساری رات بارش ہوتی رہی، لیکن مانو چڑا گھر لوٹ کر نہیں آیا۔ پھر اگلے دن کچھ سمے کے لیے بارش رکتی ہے۔ شکر ہے بارش رک گئی، میں ابھی جا کر مانو جی کو دیکھ کر آتی ہوں۔ وہ جا ہی رہی ہوتی ہے کہ اسے راستے میں مٹھو طوطا ملتا ہے۔ لالی بہن، کہاں جا رہی ہو؟ مٹھو بھائی، مانو جی کل رات سے گھر پر نہیں آئے، میں انہیں ہی دیکھنے جا رہی تھی۔ اچھا، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ دونوں کافی آگے جا چکے تھے، لیکن مانو انہیں کہیں بھی نہیں ملتا۔ لالی بہن، میرے خیال سے ہمیں گھر واپس جانا چاہیے، موسم پھر سے خراب ہو رہا ہے، اور آج تو موسم کے پکشی بتا رہے تھے اور تیز بارش آئے گی۔ میں کیسے گھر چلی جاؤں؟ پتہ نہیں مانو جی کہاں ہوں گے، کیسے ہوں گے، انہیں کچھ ہو گیا تو میرا اور منیا کا کیا بنے گا؟
लाली बहन, अच्छा अच्छा सोचो, मानो जी को कुछ नहीं होगा, वो ठीक होंगे, मुझे पूरा यकीन है। अब घर पर चलो, मुनिया अकेली है और बारिश भी आने ही वाली है। फिर वो घर की तरफ चलते हैं। अच्छा लाली बहन, मैं अब चलता हूँ। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊँगा। आपका बहुत शुक्रिया मिट्ठू भाई। लाली अभी घर के अंदर ही दाखिल होती है कि फिर से तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। मुसलसल बारिश से उसके घर की छत टपकने लगती है। माँ, हमारे घर में तो पानी आ रहा है। अगर कुछ ही देर में और ज़्यादा पानी आ गया तो हम डूब जाएंगे। कुछ नहीं होगा मेरी जान, तुम परेशान मत हो। बारिश के साथ साथ तेज़ हवाएं भी चल रही थीं। फिर तेज़ हवाओं से टूनी का घर टूट जाता है और वो घर के नीचे दब जाती हैं। बहुत मुश्किल से टूनी खुद को और मुनिया को बाहर निकालती है। वो दोनों काफ़ी ज़ख्मी हो चुकी थीं। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हाँ मेरी बच्ची, तुम्हें तो काफ़ी चोटें लगी हैं और बारिश भी और तेज़ हो चुकी है। चलो हम जल्दी से कालू भाई की तरफ चलते हैं, वो ज़रूर हमारी मदद करेंगे। वो जाकर कालू का दरवाज़ा खटखटाती है। सोमी जाग रही थी। वो खिड़की से टूनी को देख लेती है। अरे ये मुसीबत कहाँ से आ गई? कालू जी तो गहरी नींद सो रहे हैं, खुद ही चली जाएगी, मैं भी दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। और फिर ऐसा ही होता है। सोमी दरवाज़ा नहीं खोलती। वो जख्मी हालत में मुनिया को उठाए मिट्टू के घर की तरफ चलती है। मिट्टू दरवाज़ा खोल देता है। अरे लाली बहन, ये क्या हो गया? अच्छा, मैं वैद काका को बुलाकर लाता हूँ, तुम दोनों तो काफ़ी जख्मी हो। वो वैद काका को बुलाकर लाता है। वो उनकी मरहम पट्टी करते हैं। लाली बहन, तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं तुम दोनों का अच्छे से ख्याल रखूँगा। वो उनका बहुत ख्याल रखता है। अगले दिन जब बारिश रुकती है तो मानो चिड़ा भी आ जाता है। वो लाली और मुनिया को ढूंढता हुआ मिट्टू के घर तक आ जाता है। मानो जी, आप ठीक हैं? शुक्र है ऊपर वाले का, वरना मैं तो बहुत डर गई थी। लेकिन आप 2 दिन से कहाँ पर थे? वो मैं बारिश में मुनिया के लिए दाना लेने ही जा रहा था कि एक लकड़ी जोर से आकर मेरे सर से टकराई और मैं वहीं पर बेहोश हो गया और फिर मुझे होश ही नहीं आया। और फिर जब मुझे होश आया तो मैं एक बुढ़िया काकी की तरफ था। उसने मेरा बहुत ख्याल रखा और फिर मैं जैसे ही ठीक हुआ मैं वापस आ गया। और फिर लाली भी सारी बात मानू को बताती है। अरे मिट्टू भाई, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी फैमिली का बहुत ख्याल रखा। अच्छा अब हम चलते हैं, जाकर नया घर भी तो बनाना है। शाम को फिर बारिश आ जाएगी, मौसम के पक्षी बता रहे थे। कोई बात नहीं मानू भाई, तुम और लाली बहन भी तो हमेशा हमारा ख्याल रखते हो। और फिर शाम होने से पहले ही वो तीनों मिलकर एक खूबसूरत और पक्का घर बना लेते हैं। मुनिया भी अपने नए घर में माँ पिता के साथ बहुत खुश थी। शाम को फिर तेज़ बारिश होने लगती है। माँ, मुझे आज पकोड़े खाने हैं, बारिश में पकोड़े खाने में बहुत मज़ा आता है। हाँ ना, मैं अभी अपनी मुनिया के लिए बनाती हूँ। और फिर वो हंसी खुशी रहने लगते हैं। दूर किसी जंगल में लाली चिड़िया रहती थी। लाली और कालू कौवे की बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों हर एक बात दूसरे से शेयर करते थे। एक दिन कालू कौवा पेड़ पर बैठा मीठे मीठे सेब और आम खा रहा था। तभी उसी तरफ एक बाघ आ रहा था। बाघ काफी दिन से भूखा था और वो काफी परेशान भी लग रहा था। क्या रे शेरू, तेरे भी क्या दिन आ गए हैं। एक गधा भी तुझे जुलत्ती मारकर चला गया। बूढ़ा हो गया हूं ना, लगता है अब शिकार करना मेरे बस की बात नहीं। फल और घास फूस खाकर ही गुजारा करना होगा। शेरू फलों के बाग की तरफ ही आ रहा था। फल भी कैसे खाऊं? इस कौवे से कहता हूँ, मुझे फल उतार दे। कौवे मियाँ, मेहरबानी करके मुझे भी कुछ फल उतार दो।
कौवे को तो पहले यकीन ही नहीं आया कि बादशाह उससे मुखातिब है। क्या क्या, मैं उतार कर दूं? हाँ हाँ, तुम्हें ही कह रहा हूँ। अभी उतार कर देता हूँ बादशाह सलामत। शेर भी अपनी इज्जत अफजाई पर बहुत खुश था। शेरू वो फल खाता है। अरे ये कौवा तो बहुत अच्छा है। चलो पशु तो मेरी इज्जत अब करते नहीं। ये तो काफी मीठे हैं। लगता है इस कालू से दोस्ती करनी पड़ेगी और ये रोज मुझे फल उतार कर दिया करेगा और मैं खाया करूंगा। बादशाह सलामत, एक बात तो बताएं, आप तो गोश्त खाते थे, फिर ये फल क्यों खाना शुरू कर दिए? अगर इसको असल बात बता दी तो मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। बस यूं ही, फल सेहत के लिए अच्छे होते हैं और वैसे भी मैं गोश्त खा खा कर ऊब चुका हूँ। क्या तुम मुझे यहाँ से रोज फल उतार कर दे सकते हो? क्यों नहीं बादशाह जी, मैं आपको रोज फल उतार दिया करूँगा। तुम बहुत अच्छे हो। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मैं और शेर से दोस्ती? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरे लिए तो ये बड़ी खुशकिस्मती की बात होगी। तो बस ठीक है, आज से हम पक्के दोस्त हैं। अच्छा मैं अब चलता हूँ, मेरी पत्नी इंतजार कर रही होगी। शेरू कुछ फल अपनी पत्नी के लिए भी लाता है। कालू तो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। वो फौरन लाली के पास जाता है और उसे सब बताता है। लाली, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी और जंगल के बादशाह से दोस्ती, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। वो तो ठीक है कालू, लेकिन देखकर, वो बाघ है, कहीं तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। नहीं लाली, वो ऐसा नहीं है। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तुम देखना सभी पक्षी कैसे मुझसे जलेंगे कि मेरी शेर से दोस्ती है, और अब तो कोई मुझे बुद्धू भी नहीं कहेगा और ना ही कोई मेरा मजाक उड़ाएगा। फिर भी तुम बहुत भोले हो, जरा होशियार होकर रहना। और वैसे भी दुश्मन पर पूरा भरोसा कभी भी नहीं करना चाहिए। शेरू अब इसी तरह रोज कालू के पास जाता था और कालू से फल तोड़कर देता था, और दोनों कई घंटों तक एक दूसरे से बातें करते, और जाते हुए शेरू वो फल अपनी पत्नी के लिए भी ले जाता। इसी तरह समय गुजरता गया। कालू को अब बाघ पर पूरा भरोसा हो चुका था। फिर एक दिन बाघ की पत्नी कहती है, सुनिए जी, आप ये मीठे मीठे फल कहाँ से लाते हैं? ये फल मेरा दोस्त है ना कालू कौवा, वो मुझे तोड़ कर देता है। कालू, ये कौन सा दोस्त है जिसे मैं नहीं जानती? कालू कौवा है, कुछ ही दिन पहले मेरा दोस्त बना था। तो क्या वो ये फल खुद भी खाता है? हाँ, वही तो मुझे चख चख कर मीठे फल देता है। अच्छा, ये बात तो आपने मुझे बताई ही नहीं। मैं सोच रही हूँ, अगर ये फल इतने मीठे हैं तो जो ये फल खाता है वो खुद कितना मीठा होगा, उसका दिल कितना मीठा होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे आपके दोस्त का दिल खाना है। ये क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? वो मेरा बहुत बहुत अच्छा दोस्त है और वो ही तो हमें रोज फल तोड़कर देता है। मुझे नहीं पता, मैंने कह दिया ना कि मुझे उसका दिल खाना है तो बस खाना है, वरना मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। शेरू बहुत परेशान होता है। फिर वो कालू को घर लाने पर तैयार हो ही जाता है। वो कालू के पास जाता है। दोस्त, देखो, आज मैंने पहले से ही तुम्हारे लिए फल जमा कर लिए हैं। कालू, आज मैं तुम्हें अपने घर ले जाने के लिए आया हूँ। मेरी पत्नी है ना, वो तुम्हारी सेवा करना चाहती है। तुम रोज रोज हमें मीठे मीठे फल खिलाते हो ना, मैंने उसे तुम्हारे बारे में बता दिया है। अच्छा, सच में? फिर तो मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। कालू शेरू के साथ चल पड़ता है। शेरू उसे अपने गार की तरफ लेकर जा रहा था। वैसे दोस्त,
भाभी मुझसे मिलकर खुश तो होंगी ना? हाँ हाँ, उसने तो तुम्हारी सेवा के लिए कई कई तरह के भोजन बनाए हैं, सुबह से लगी हुई है। लाली कालू की तरफ आती है तो वो घर पर नहीं था। ये कालू कहाँ चला गया? वो तो अपने फलों वाले पेड़ को छोड़कर कहीं भी नहीं जाता। लाली कालू को देखने के लिए जा ही रही थी कि भी वहां पर कटवा मुर्गी आती है। अरे लाली, तुम किधर जा रही हो? कालू घर पर नहीं है ना, उसे ही ढूंढने जा रही हूँ। कालू, कालू को तो मैंने शेरू के साथ उसके घर की तरफ जाते देखा था। लाली को ये बात कुछ अजीब सी लगी, क्योंकि कालू इससे पहले कभी भी शेरू के घर की तरफ नहीं गया था। वो फौरन से उसको ढूंढने के लिए चली जाती है। उधर कालू और शेरू दोनों गार में पहुंच जाते हैं, लेकिन गार में पहुंच जाने पर वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था जो शेरू ने बताया था। शेरू भाई, मुझे तो कोई भी तैयारी नहीं लग रही, कहीं भाभी नाराज होकर तो नहीं चली गई? पता नहीं कहाँ चली गई। कालू मेरा कितना अच्छा दोस्त है ना, और मैं उसके साथ धोखा कर रहा हूँ। मुझे उसे सच जरूर बता देना चाहिए। कालू, मेरे दोस्त, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। मेरी पत्नी है ना, वो तुम्हारा दिल खाना चाहती है, इसलिए मैं आज तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। कालू का तो ये सुनकर रंग ही उड़ जाता है। लाली को पहले ही गड़बड़ लग रही थी, इसलिए वो गार के बाहर ही थी। वो अंदर आकर कहती है, अरे कालू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और अपना दिल वहीं पेड़ पर छोड़ आए हो? कोई भी आए और तुम्हारा दिल लेकर चला जाए? क्या क्या, ये कैसे हो सकता है? अरे बादशाह सलामत आपको नहीं पता, हम पक्षी अपना दिल कहीं भी छोड़ सकते हैं। कालू को सारी बात समझ में आ जाती है। अच्छा दोस्त, फिर मैं तुम्हें अभी अपना दिल लाकर देता हूँ। ये कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद शेरू की पत्नी आकर पूछती है, तुम्हारा दोस्त किधर गया? वो वो तो अपना दिल लेने गया। वो कह रहा था कि उसका दिल तो पेड़ पर ही रह गया। अरे बुद्धू, वो दोनों तुम्हें बेवकूफ बना गए हैं, अब वो नहीं आने वाले। कालू को भी अपनी मूर्खता का एहसास हो चुका था। अब उसने आइंदा से किसी पर भी अंधा भरोसा करने से तौबा कर ली।